OLE, the utopian world of online education. Hello dear students, welcome to OLE. In our previous sessions, we have studied that if any electric charge is moving in the electric field, then it must experience a force on it. Similarly, if any charges are moving in the magnetic field, it experiences a force on it. What is the difference in the force experienced in electric field as well as experienced in magnetic field? When the charge is moving in electric field, then it can experience the force in three conditions. If suppose that there is a charge q due to which there is an electric field, since this is a positive charge, so electric field is going outward. अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती. Okay, if we are putting another charge here q, then it will experience a force, and that force will be F is equal to q into E. This we have studied. Why this is? Because we know that the force when between two charges F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q square upon r square, and electric field is equal to F upon q. So that's why the force will be q into E, q dot E. If what are the conditions? If charges are stable, किन किन कंडीशंस में फोर्स लगेगा? तो पहली कंडीशन क्या है? इफ बोथ चार्जेस आर स्टेबल. सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ वन चार्ज इज स्टेबल and other charge is moving. These are the two conditions when the electric field will be experienced by another charge q. इन दो कंडीशंस में ही सिर्फ इस पे फोर्स लगेगा और ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. अगर दोनों चार्ज मोशन में है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो F जीरो होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो लगेगा, उस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा when both charges are moving. Okay, so only in these two conditions any charge in electric field will experience any force. अब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं. मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कोई चार्ज रखा हुआ है Q, क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नो. ये फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा? उसकी कंडीशन क्या है? एनी चार्ज विल एक्सपीरियंस magnetic force only in condition when charge is moving. Charge is moving. If it is in stable condition, it will not experience any force. अब अगर ये मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, then it will experience any force. अब इस पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा. So what will be the amount of force experienced by this charge? What we know that if any charge will experience magnetic force only in condition when the charge is moving, and the amount of that force F is equal to QVB sin theta. अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है then we can write F is equal to Q V cross B. Okay. So this will be the force experienced by the charge when it is moving in magnetic field. One more difference is there कि यहाँ पे जब फोर्स लगेगा तो वो चार्ज को एसिलरेट करता है
मोशन देता है एक डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे लगेगा Fm, वो क्या करेगा, वो सिर्फ इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। और वो डायरेक्शन कैसे चेंज होती है वो हम राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इन रूल्स के, या कॉर्क स्क्रू रूल, दीज आर द रूल्स जिससे हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। ओके, अब थर्ड केस कि अगर कोई चार्ज एक ऐसी फील्ड में मोशन कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ओके, अगर दोनों फील्ड है और कोई चार्ज क्यू इस फील्ड में मोशन कर रहा है, तब इस पे कितना फोर्स लगेगा। Now the force applied on this charge will be due to E, electric field, as well as due to magnetic field. So F net जो इस पे लगेगा वो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये F net होगा। इसी F net को हम क्या बोलते हैं, दिस फोर्स इज नोन एज लॉरेंट फोर्स। Okay. So today we will discuss about Lorentz force. We'll see some of the cases in which how the Lorentz force is acting and what will be the path followed by the charge. Okay. So let me see the first case. So our today's topic is Lorentz force. Okay. So let's see first case. Suppose that there is an electric field in this direction E, and in the same direction parallel to this electric field there is a magnetic field B. A charge is kept here Q. यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है एंड इट इज इन पोजीशन ऑफ रेस्ट। इसका मास क्या है m, रेस्ट की पोजीशन में है, मोशन नहीं कर रहा है, इसका मास m है। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, इसका पाथ क्या होगा, लेट्स डिस्कस। So first of all, we will discuss about electric field. Due to electric field, it will experience a force, and that force will be F is equal to QE. Okay. And due to this force, there will be an acceleration. है ना, फोर्स लगा तो एक्सेलरेट करेगा ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट करेगा फोर्स की वजह से। अभी मैग्नेटिक फील्ड्स, अभी जो मैग्नेटिक फोर्स है इनिशियली इस पे कोई नहीं लग रहा है। वाई, बिकॉज इट इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अभी ये रखा हुआ है, स्टेबल कंडीशन में है, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स इस पे वर्क नहीं कर रहा है। बट एज electric field, due to electric field it will experience a force, and due to this force the charge will accelerate, और चार्ज जब एक्सीलरेट होगा मोशन में आ जाएगा तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर लेते हैं। इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स F इज इक्वल टू QE, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज इस डायरेक्शन में, और वो फोर्स कितना होगा QE। ड्यू टू दिस फोर्स देयर विल बी एक्सीलरेशन इन द चार्ज, एंड व्हाट विल बी दैट एक्सीलरेशन, किस डायरेक्शन में होगा, ये अगर हम एक्स वाई दो कंपोनेंट ले लिए हैं तो एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। सो व्हाट विल बी द AX, A इज इक्वल टू F अपॉन M। F कितना है QE एंड M कितना है M, जो भी चार्ज का मास हो। सो दिस विल बी द एक्सीलरेशन। स्पीड क्या होगी चार्ज की, स्पीड के लिए हमें मालूम है v इज इक्वल टू u प्लस AT, दिस इज द फॉर्मूला। सो स्पीड किस डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में उसकी होगी, x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है ना, सिर्फ QE लग रहा है इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स अभी देखेंगे हम, पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है x की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा चार्ज। तो Vx इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, रखा हुआ था चार्ज, स्टेबल कंडीशन में था यानी 0 था, प्लस a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, QE बाई M इंटू टी। सो Vx इज इक्वल टू QE अपॉन MT, ये इसकी
स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। नाउ अब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। चार्ज मोशन कर रहा है, ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक। सिंस द चार्ज इज मूविंग सो देयर विल बी अ मैग्नेटिक फोर्स, बट चार्ज की डायरेक्शन क्या है मोशन करने की, along the direction of magnetic field, means what the angle is there between charge and magnetic field, it is 0 degree, so fm will be qvb sin 0 and it will be 0, so fm is 0, यानी कोई मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग नहीं रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था उसी डायरेक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में इसको मोशन करा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल फॉलो द सेम पाथ, यानी स्ट्रेट लाइन। सो पाथ और ट्रेजेक्टरी विल बी स्ट्रेट लाइन। है ना, समझ गया ना ये केस। दूसरा केस देखते हैं, अगर ये मोशन कर रहा है तब क्या होगा। सेकेंड केस में चार्ज मोशन कर रहा है, चार्ज इज इन मोशन, सपोज दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब कोई चार्ज है जो मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी से मान लिया हमने, या u वेलोसिटी से मान लिया, u वेलोसिटी से मोशन कर रहा है x डायरेक्शन में चार्ज। ओके, नाउ वी हैव टू सी व्हाट विल बी द पाथ फॉलोड बाय दिस चार्ज। क्या डिफरेंस होगा इस केस में और इस केस में, अब क्या डिफरेंस होगा। सो वी कैन सी सिंस द चार्ज इज मूविंग सो देयर विल बी अ मैग्नेटिक फोर्स, है ना, मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस चार्ज q which must be in stable condition, ये स्टेबल कंडीशन में होगा, रेस्ट में होगा, ये मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंडीशन हमने बताई कि इफ वन चार्ज इज मूविंग एंड अनदर चार्ज इज एट द रेस्ट, then too there will be some electrostatic force will be applied on this charge. The only condition when it will not experience any force, when the both charges will in a state of motion. अगर ये चार्ज भी मोशन कर रहा है, ये भी मोशन कर रहा है, then only electrostatic force will be not applicable on the charges, otherwise it will experience a force. So it will experience a force. What will be that force? F is equal to QE. Okay, due to this force there will be acceleration in direction of x, and that will be F by m, means QE upon m. Very good. Now what will be the speed of the charge? So we know Vx is equal to Ux plus AT. So Vx is equal to, now अब इनिशियली इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी क्या है, Ux हमने मानी है, तो हम Ux रख देते हैं इसकी वेलोसिटी, प्लस QE बाय m इंटू टी, ये स्पीड हो जाएगी चार्ज की। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेते हैं। Magnetic force, since it is in motion, so magnetic force will be applied, but it is in the direction of magnetic field, so there will be angle of 0 degree, hence Fm will be 0, है ना। फिर से क्या है ये केस कि जो चार्ज मोशन कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसलिए एंगल इन दोनों के बीच में 0 डिग्री, और साइन 0 0, इसलिए Fm is equal to QVB sin थीटा, साइन थीटा इज 0, सो Fm विल बी 0, सो मैग्नेटिक फोर्स कोई नहीं लगेगा, इसलिए फिर से एक बार ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, अगेन स्ट्रेट लाइन मोशन। okay, again it will do the straight line motion। और केसेस देखते हैं, इस तो जितने भी हम केसेस देख रहे हैं उतने
टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, या जेई में भी आ सकते हैं, नीट में भी आ सकते हैं। तो हम जितने केसेस पॉसिबल हैं उतने केस, हालांकि बहुत से केसेस पॉसिबल हैं, कभी इसको बी को परपेंडिकुलर टू ई कर देंगे, कभी उसके एंगल चेंज कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल देख लेंगे, और लेकिन कुछ जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी वन मोर केस, थर्ड केस। In this case, this is electric field, this is magnetic field, and this time charge is doing the perpendicular motion in the magnetic field. This is the charge और इसका motion perpendicular है V. In this case, now we will discuss this case. Okay. So first we will discuss what will be the force due to electric field on this charge. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये चार्ज आएगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस फोर्स, चार्ज विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मोशन कराना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे, है ना। फिर मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन कराना चाहेगा इस चार्ज को इन दिस डायरेक्शन, ऐसे फोर्स लगेगा। अगर ये ऐसे जा रहा था चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स इस पे लग रहा है Fe, ठीक, और इसका मोशन ये है, तो ये इस पे ऐसे फोर्स यानी इस डायरेक्शन एक्स की डायरेक्शन में इसको मोशन कराना चाहेगा। ड्यू टू दिस फोर्स देयर विल बी एक्सेलरेशन A, which will be F by m. M is the mass of this charge. So A is equal to F by m. A will be in direction of x. So Ax is equal to QE upon m. ये तो एक्सेलरेशन हो गया। स्पीड क्या होगी, x की डायरेक्शन में होगी, Vx is equal to Ux plus AT, ठीक है। इनिशियली x की डायरेक्शन में इसकी स्पीड क्या है, 0। अभी जो स्पीड है वो y की डायरेक्शन में है, x की डायरेक्शन में इनिशियली कोई स्पीड नहीं है। सो Vx विल बी 0 प्लस a की जगह हम रख सकते हैं QE by m into t. So this implies Vx is equal to QE by m to t. This will be the speed of the charge, जो चार्ज मोशन कर रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उसकी स्पीड होगी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। सो दिस टाइम चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सो Fm विल बी, Fm इज इक्वल टू QVB sin theta. Here sin theta is 90 degree, so Fm is equal to QVB. Sin 90 1, sin 90 means 1, so Fm is equal to QVB. अब आपने जो प्रीवियस सेशंस में पढ़ा है कि अगर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है किसी चार्ज पे, जब वो चार्ज परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो वो कैसा मोशन कराती थी चार्ज को। तो आपने वो केस यू मस्ट हैव स्टडीड कि अगर ये डायरेक्शन है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कैसी है, ये डाउनवर्ड ऐसे, ठीक, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और एनी चार्ज इज एंटरिंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये Q चार्ज इसमें इंटर हुआ V वेलोसिटी से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। ओके, वी हैव स्टडीड दिस केस, है ना, हमने पिछले सेशन में, लेक्चर में ये केस स्टडी किया था। इफ एनी चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल डू द सर्कुलर मोशन, ठीक। तो ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ये अभी y डायरेक्शन में ये सर्कुलर मोशन करेगा, यू, है ना, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे B के क्रॉस ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक। तो अभी इस चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इसको आगे की तरफ x डायरेक्शन में मोशन करा रहा है और दूसरा फोर्स y डायरेक्शन में इसको सर्कुलर मोशन करा रहा है। तो
अब इसका पाथ कैसा हो जाएगा? अब इसका पाथ हेलिकल हो जाएगा। ओके, ये ऐसा पाथ हो जाएगा, हेलिकल पाथ। अब इसमें हर एक साइकिल जो है, एक साइकिल कहां से यहां तक एक साइकिल है, इस साइकिल से ये साइकिल बड़ी होगी, इस साइकिल से ये साइकिल बड़ी है, इस साइकिल से ये साइकिल बड़ी, इस साइकिल से ये साइकिल बड़ी। ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई दिस इज हैपनिंग? पिच उसकी चेंज क्यों हो रही, वेरी क्यों हो रही है? हेलिकल इसका मोशन कैसा है, पाथ क्या है, देख लेते हैं। पाथ क्या है? हेलिकल विद वेरिएबल पिच। Why I am using वेरिएबल पिच? क्यों? क्योंकि E की डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड X की डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, और वो एसिलरेट कर रहा है इस चार्ज को। तो पहली बार जो मोशन किया इसने, एक साइकिल कंप्लीट की, दूसरी बार एसिलरेशन की वजह से और तेजी से मोशन होगा, तीसरी बार और तेजी से मोशन होगा, तो ये या टाइम पीरियड हमारा बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, उसके बीच का ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, है ना। तो ये है, तो इसका पाथ क्या होगा? हेलिकल विद वेरिएबल पिच। ये केस हमारा था जब चार्ज परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ विल सी वन मोर केस। अगर किसी डायरेक्शन में किसी एंगल पे मोशन करे तब क्या होगा? अभी तो ये 90 डिग्री पे मोशन कर रहा था विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इफ द एंगल इज 60 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, देन व्हाट? अगर किसी भी एंगल पे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, किसी भी एंगल में, किसी भी डायरेक्शन में, देन व्हाट विल बी द केस? लेट्स सी। ओके, लेट्स सी वन मोर केस। इफ, कौन सा केस है ये? फोर्थ। ओके, this is the direction of electric field, this is the direction of magnetic field, and charge is entering into the field with any angle. ये कोई एंगल थीटा से इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, what the angle it is making? It's making an angle of theta when it is entering into the electric and magnetic field. So first of all we will discuss about electric field. So due to the electric field, it will experience a force in the direction of x की डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगेगा, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वो फोर्स कितना होगा? इसके लिए हम इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं। एक कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा? v नॉट साइन थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे v नॉट कॉस थीटा हम ले लेंगे इसकी। पहले बात करते फोर्स कितना लगेगा इस पे। F इज इक्वल टू क्यू ई। ड्यू टू दिस फोर्स एसिलरेशन होगा किस डायरेक्शन में? x की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में इसको एसिलरेट कराएगी। Ax इज इक्वल टू F बाई एम मीन्स क्यू ई अपॉन एम। अब देखते हैं स्पीड क्या होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। Vx इज इक्वल टू ux प्लस AT। ये क्या होगा? ux, ये v नॉट कॉस थीटा होगा। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? ये कंपोनेंट जो x की डायरेक्शन में है, तो हम वो कंपोनेंट ले लेंगे। v नॉट कॉस थीटा प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी। ये स्पीड ऑफ चार्ज हो जाएगी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। Fm is equal to QVB sin theta. This component is along the magnetic field, तो इस पे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, इस पे जो Fm होगा that will be zero. फोर्स किस पे लगेगा? V नॉट साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, एंड दैट इज डूइंग परपेंडिकुलर मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। V नॉट साइन थीटा, देयर विल बी फोर्स, there will be
magnetic force experienced by charge due to vertical component. V नॉट साइन थीटा, इसकी वजह से फोर्स लगेगा. Fm is equal to, we should write Fm is equal to QV. So Fm is equal to Q, in place of V it will be V naught sin theta. V naught sin theta into sin theta. ये sin theta कितना होगा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, so sin 90 डिग्री. So Fm is equal to Q V naught, it is B, यहाँ B भी होगा, Q V naught B sin थीटा, ये फोर्स हो जाएगा. ओके, Q V naught B sin थीटा. अब परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा, एक बार फिर से हम पुराने अपने रूल्स याद करते हैं. अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है देन सर्कुलर मोशन, इट विल डू द सर्कुलर मोशन. और वाई डायरेक्शन में ये सर्कुलर मोशन करेगा, है ना, ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो सर्कुलर मोशन करेगा. अब जब सर्कुलर मोशन करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, इट विल डू द मोशन इन एक्स डायरेक्शन. तो एक बार फिर से हमें हेलिकल पाथ मिलेगा. हेलिकल विद वेरिएबल पिच. वेरिएबल क्यों हो रही है, पिच वेरिएबल क्यों हो रही है, पिच क्या है, एक कंप्लीट साइकिल. और वो वेरिएबल क्यों हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए हर बार चेंज हो जाएगा, स्पीड बढ़ी हुई होगी तो हर बार इसका जो साइकिल है वो चेंज हो जाएगा, पिच चेंज हो जाएगी. वेरिएबल पिच पाथ ये होगा इसका. सो होप आपको ये केसेस समझ में आने लगे होंगे. अब कैसा भी क्वेश्चन हो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे कि कौन सा फोर्स इस पे एक्ट करेगा, क्या डायरेक्शन है, कौन सा एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा. एंड फाइनली यू विल बी एबल टू टेल द लॉरेंट्ज फोर्स, उसकी स्पीड क्या होगी, उसका पाथ क्या होगा, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू डिसाइड नाउ, है ना. अब हर एक चीज आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. Okay, so we will discuss one more case. Suppose that fifth case, हमने एक प्लेट ली, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मेटालिक प्लेट है जिस पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एंड दिस इज अनदर प्लेट व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिव चार्ज है इस पे. सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव. This will be the direction of electric field. And suppose that magnetic field is inward. This is the direction of magnetic field. Its direction is inward. अंदर की तरफ है. ठीक. So both fields are acting here perpendicular to each other. एक दूसरे के perpendicular. If this is the direction of electric field, then this is the direction of magnetic field. Both are perpendicular to each other. And now the third, एक चार्ज आ रहा है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये this is the direction of charge. ये थंब जो है ये चार्ज की डायरेक्शन है, Q v वेलोसिटी से. Okay, so this is the case. There is electric field E, there is magnetic field B, due to this inward. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है,
ओके और ये चार्ज है जो v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम चेक करते हैं कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा और क्या डायरेक्शन होगी इसकी, एक्सेलरेशन कितना करेगा, दोज ऑल कंपोनेंट्स फर्स्ट वी विल चेक। सो F इज इक्वल टू QE। एक चार्ज स्टेबल कंडीशन में, ये जो चार्जेस हैं स्टेबल कंडीशन में है ड्यू टू दोज these are the electric field lines and this charge is in moving condition, तो फोर्स तो लगेगा F is equal to QE। और ये फोर्स चार्ज को कैसे ले जाना चाहेगा, ऐसे माइनस वाई डायरेक्शन में, ये x है ये y है ये माइनस वाई है। तो अब की बार चार्ज कैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैसा मोशन कराना चाहेगी, माइनस वाई डायरेक्शन में, है ना। सो F विल बी एक्टिंग इन माइनस वाई डायरेक्शन। Force acts in minus y डायरेक्शन, ओके ऐसे डाउनवर्ड माइनस वाई डायरेक्शन में, फोर्स एक्ट्स इन माइनस वाई डायरेक्शन, ओके। सो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, a माइनस वाई इज इक्वल टू F बाई m मीन्स QE बाई m, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा इसका, ओके डाउनवर्ड। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, इस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड है और ये उसके 90 डिग्री पे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी काम करेगी, साइन थीटा 90 डिग्री हो गया, यानी Fm इज इक्वल टू QVB। ठीक, यू मस्ट हैव बीन एक्सपर्ट अप्लाइंग ऑल दीज रूल्स, फ्लेमिंग पाम रूल, मैक्सवेल स्क्रू कॉर्क रूल, न्यूमेरिकल लगाए हैं ना, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाते जाओगे उतने एक्सपर्ट होते जाओगे। और अगर न्यूमेरिकल नहीं लगाए, कितना भी कॉन्सेप्ट समझे हुए हो, कुछ ना कुछ गलती कर दोगे, इसीलिए एज मच एज न्यूमेरिकल्स यू विल सॉल्व, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। केवल पढ़ के बहुत सी चीज़ें हमें नहीं आती हैं, बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में करने के बाद आती हैं ना। टेक्स्ट बुक से जो नॉलेज मिलता है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उससे बहुत वास्ट डिफरेंस होता है। आप किसी बीटेक के स्टूडेंट को टेलीविज़न के पार्ट्स, एक टेलीविज़न है उसको ओपन कर दीजिए और उसको बोलिए कि असेंबल कर दे, पढ़ा होगा उसने, है ना, पढ़ा होगा कम्युनिकेशन का भी, अगर बीटेक इसी से किया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स से तो पढ़ा होगा डेफिनेटली, बट ही विल नॉट एबल टू असेंबल द टीवी, मतलब टेलीविज़न के पार्ट्स को सही जगह पे असेंबल नहीं कर पाएगा, मे बी पॉसिबल कि आइडेंटिफाई भी ना कर पाए कि कौन सा पार्ट क्या है। बट वही एक मैकेनिक को, जो कि हो सकता है हाई स्कूल पास हो या इंटर पास हो, आप उसको बोलेंगे तो वो एक एक पार्ट को आइडेंटिफाई भी करेगा, ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, ये डायोड है, ये all parts he will be able to identify and will assemble at the right direction। हर राइट पार्ट को राइट जगह पे लगा के आपको पूरा टीवी असेंबल करके दे देगा। सो दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज। एंड जो अभी इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन आप ड्यूरिंग इंजीनियरिंग पढ़े हो वो क्या है, टेक्स्ट नॉलेज। टेक्स्ट नॉलेज जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो यूजेबल नहीं होगा, है ना। बहुत से अच्छा बड़ी दिक्कतें होती है आप लोगों के साथ, बहुत से मेनी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि हम पढ़ने तो बैठते हैं बट थोड़ी देर एक दो पन्ने पलटते हैं उसके बाद मन कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, मन नहीं करता, और बहुत सोचते हैं कि कल से बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे पढ़ना और कल से बिल्कुल हिलेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, अपने को खूब माइंड मेकअप करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वही होता है कि दो पन्नों के बाद वो बुक रखी रहती है और आप शाम तक सिर्फ वही दो पन्ने पढ़ पाते हो। अच्छा थोड़ी देर चाय पी लेते हैं फिर आते हैं फिर पढ़ते हैं, अच्छा थोड़ी देर बाहर एक चक्कर काट के आते हैं फिर पढ़ते हैं, है ना। ये बहुत सारे आप अपने आप से वादे करते हो और
उन पे खड़े नहीं उतरते हो। ऐसा क्यों होता है? वाई इट हैपेंस? और नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के साथ होता है ये। दिस इज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आप क्या करते हो उस कंसंट्रेशन को बनाने के लिए? आपको अपना 1 घंटा रोज देना होगा खुद को कंसंट्रेट करने के लिए। आप ये आदत डेवलप करो। पहले 5 मिनट के लिए आप बैठना स्टार्ट करो। 5 मिनट तक आपके दिमाग में कोई थॉट्स ना आए, एकदम नील, ब्लैंक। 5 से 10 मिनट करो, 10 से 15 मिनट करो, 15 से 30 मिनट करो। जैसे जैसे आपका वो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा, आप उतनी देर तक पढ़ सकते हो, उतना ज़्यादा आप किसी भी टॉपिक पे कंसंट्रेट कर पाओगे। तो जितना आप रेस्ट दोगे अपने दिमाग को, थॉट्स बिल्कुल ना आए जब आप जग रहे हो उस कंडीशन में, उतना ज़्यादा वो कंसंट्रेशन दूसरी तरफ आप बुक्स में लगा पाओगे, पढ़ पाओगे, नॉलेज गेन करने में लगा पाओगे। कहीं ना कहीं आपको रेस्ट देना होगा दिमाग को। वो किससे आप दे सकते हो? ध्यान, ध्यान लगा के, योग करके, कंसंट्रेट करके खुद को, है ना। सो यू हैव टू डू। इनिशियली आप बैठना स्टार्ट करिए कम से कम, देन धीरे धीरे डेवलप होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आपने कर लिया फिर आप कंसंट्रेट करने लगे। ये महीनों की प्रैक्टिस होगी आपकी, बहुत दिनों तक चलेगी। देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दिस। ओके, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे एफ एम क्या हो जाएगा? क्यू वी बी। डायरेक्शन देखते हैं अब हम। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक, अंदर की तरफ। और मैग्नेटिक और चार्ज किस तरफ मोशन कर रहा है? ऐसे। ये फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड, प्लस वाई डायरेक्शन में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस वाई डायरेक्शन। फोर्स विल अप्लाई इन प्लस वाई डायरेक्शन। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसको, चार्ज को नीचे की तरफ खींचेगा, और मैग्नेटिक फोर्स उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। अब पाथ किस बात पे डिपेंड करेगा? चार्ज का। चार्ज का पार्ट डिपेंड करेगा कि हु इज मोर इफेक्टिव, है ना। तो 3 केस हो सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, या दोनों इक्वल हो सकते हैं, है ना। तीनों केसेस देखते हैं। पहला केस देखते हैं, व्हेन एफ ई इज ग्रेटर देन एफ एम। इस केस में पाथ कैसा होगा? इस केस में पाथ हाइपरबोला होगा, जो नीचे की तरफ, ऐसे यहां से चार्ज इंटर हुआ मान लिया हमने, तो ये नीचे की तरफ, क्योंकि एफ ई इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एफ एम। नीचे की तरफ पैराबोला बन जाएगा, ये पाथ होगा। सेकेंड केस क्या होगा? अगर एफ ई लेस देन एफ एम है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऐसे पाथ बन जाएगा हाइपरबोला, है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा इफेक्टिव है। थर्ड केस, एफ ई इज इक्वल टू एफ एम। अब क्या होगा पाथ? बोलो। जब एफ ई एफ एम के बराबर है तब क्या पाथ होगा? तो ये जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि ना तो नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, ना ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है। आप ऐसे खड़े थे और ऐसे जा रहे थे, आपके एक फ्रेंड ने आपको इस तरफ खींचना स्टार्ट किया, एक ने इस तरफ खींचना स्टार्ट किया, दोनों का फोर्स जीरो हो गया, है ना। जो दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट जीरो हो गया, तो आप फ्री हो गए, दोनों फोर्स न्यूट्रल हो गए एक दूसरे से। आप फ्री हो, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उस डायरेक्शन में जा सकते हो। हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब दोनों खींचेंगे आपको तो आप इसी डायरेक्शन में रहोगे, या तो आप उन दोनों से ज़्यादा स्ट्रांग हो तो दोनों को खींचते हुए चले जाओगे, है ना। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल है, जब दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दे विल न्यूट्रलाइज। ये जो ऊपर से लग रहा है हमारा, ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, खत्म हो गए। तो अब ये जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा था उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन।
ओके, सो दिस वाज द लास्ट केस। और भी केसेस बन सकते हैं, प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगाइए, और देखिए कि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो, टेक इट एज ए चैलेंज कि हमको इस टॉपिक से, लॉरेंस फोर्स से, आस्क मी एनी क्वेश्चन आई विल एबल टू सॉल्व। जब इस तरह के चैलेंजेस आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, देन आप सफलता के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। So hope that you enjoyed today's session. We'll meet in the next session. Till then, take care of yourself. Have a great day.